Hello students, welcome to my YouTube channel Geographyguru. Today we are going to discuss about class 10th S.S.T social science worksheet number 27. Today's worksheet is quite easy but very important one because one value based question can be asked from this worksheet in your annual examination. Today we are going to discuss about the harmful effects of manufacturing industries or all the industries. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 27. Subject social science S.S.T and geography is going on. Date 5th of September 2020. Here you need to write the name of the student and then the name of the class teacher. Manufacturing industries, as we have already studied about the manufacturing industry. What is manufacturing industry? In Hindi we call it विनिर्माण. ओके, विनिर्माण इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड वी प्लस निर्माण. वी का अर्थ होता दोबारा और निर्माण का अर्थ होता बनाना, यानी कच्चे माल से नई वस्तु तैयार करना. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है इन विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू मोर वैल्यूएबल एंड मोर यूजेबल प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, sugar from sugarcane. Okay. Now today we are going to discuss about the harmful or ill effects of industries. Although industries contribute significantly to India's economic growth, we all have studied that these are very important for the growth of the development of the country. These are very important to reduce the unemployment and the poverty in any country, and these are also essential for the development of primary sector. The increase in pollution of land, water, air, noise resulting degradation of environment that they have caused. But on the other hand, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, they cause pollution, land pollution, water pollution, air pollution, noise pollution and lead to land degradation और degradation of environment. Degradation होता है क्वालिटी में कमी आना. ओके, when the environment get polluted तो वहाँ की क्वालिटी में कमी आ गई. So on the one hand, industries are very important for the economic development of the country and the society. But on the other hand, they cause pollutions, various type of the pollutions. Industries are responsible for mainly 4 types of pollution. 4 टाइप के pollution होता है इंडस्ट्री से. फर्स्ट वन एयर pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. एयर pollution means when the quality of the air decrease, कम हो जाती है तो एयर pollution है. एयर pollution क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एड हो जाती है एयर में. सेम वाटर पॉल्यूशंस व्हेन वी कंसिडर इंडस्ट्रियल वेस्टेज है वो मिक्सअप होता है किसके साथ? वाटर के साथ. तो इट कॉज वाटर पॉल्यूशन. नॉट ओनली द वाटर of rivers or the ponds, lakes etc., but also the underground water can get polluted through the industrial wastage. Land pollution, ये भी काफ़ी हद तक जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उससे होता है. एंड नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन से आप सभी अवेयर होंगे. आई थिंक द पीपल ऑफ दिल्ली एनसीआर उनसे ज़्यादा कौन जानता है. पूरी रात दिन पों पों की आपको आवाज़ आती है और इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहते हैं तो इट इज़ अनबियरेबल. The polluting industries are also include thermal power plant. इन polluting industries हैं उनमें thermal power plant भी include है और वो एक अलग टाइप का pollution करते हैं जिसे हम thermal pollution बोलते हैं. thermal pollution क्या होता है कि when the untreated water और extreme hot water, गर्म वाटर निकलता है thermal जो पावर प्लांट है वहाँ से, उसको एज इट इज़ बिना ठंडा किए अगर पानी में छोड़ा जाता है तालाब में या फिर रिवर में तो वो वहाँ पर उस पानी को पॉल्यूट करता है. जो स्पोर्टिव बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. मेनी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स आर द रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन. वी फेस मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, वी फेस मेनी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स ड्यू टू द पॉल्यूशन. दिल्ली के बच्चों को अच्छे से पता है कि पहली बार आपने लास्ट ईयर और लास्ट ईयर्स पॉल्यूशन वाली छुट्टी भी देखी थी. वी हैवेंट सीन दैट टाइप ऑफ द हॉलीडेज़. पहले नहीं होती थी, पहले त्योहारों की होती थी, पहले फसली अवकाश होते थे, लेकिन पॉल्यूशन वाली भी होने लग गई. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन. वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन. वी नीड टू, दिस इज़ द नीड ऑफ एन आर्ट टू प्रिवेंट दिस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. हमें उसको बचाने की ज़रूरत है. As we have studied in geography in the chapter number 1,
that we need to think about the which type of development, sustainable development. We need to think about the environment. हमें environment के बारे में सोचने की ज़रूरत है. Every liter of waste water discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. 1 लीटर जो पानी है वो 8 लीटर, 1 लीटर है वो 8 लीटर वाटर को पोल्यूट कर सकता है. अब ये देखिए कि 8 गुना पॉल्यूशन होता है. एज यू हैव सीन द यमुना रिवर, आपने देखा होगा यमुना रिवर एक्चुअली डजेंट कंटेन एनी वाटर नियर दिल्ली. दिल्ली के आसपास उसमें वाटर ही नहीं होता. क्या होता है, वो गटर होता है दिल्ली का. एंड अकॉर्डिंग टू वन सर्वे दैट वाटर इज़ इवन नॉट सूटेबल टू टेक द बाथ. इतना गंदा होता है. सो टू प्रिवेंट दिस वी हैव टू यूज़ लेस वाटर. पहला सॉल्यूशन तो ये है कि इंडस्ट्री शुड यूज़ द लेस वाटर. प्रमोट रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. वाटर को रिसाइकिल किया जा सकता है 3 or 4 times. एंड इट शुड बी रिलीव्ड. जब उस पानी को छोड़ा जाएगा इट शुड बी रिलीव्ड आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट. प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद उसको छोड़ा जाए. कंजर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मस्ट बी देयर. इट मस्ट बी द कंपल्सन फॉर द इंडस्ट्रीज. कंपल्सन होनी चाहिए क्योंकि इससे पानी की रिक्वायरमेंट है वहीं पूरी हो जाएगी. एंड दीज इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी ऑन द बैंक ऑफ रिवर. नदी के आसपास नहीं होनी चाहिए. दीज इंडस्ट्रीज शुड बी आउटसाइड द अर्बन एरिया. अर्बन एरिया के बाहर होनी चाहिए. ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर इट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स. इन फैक्ट्रीज न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी विल हैव टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोयल. कोल की जगह पे फैक्ट्रीज में हम न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं. वी कैन थिंक अबाउट द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. वी कैन थिंक अबाउट द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दीज कोज लेस पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू द कोल. कोल के कंपेरिजन में काफ़ी कम पॉल्यूशन करते हैं. मोर एनर्जी एफिशिएंट मशीन शुड बी यूज्ड विच मे ऑल्सो रिजल्ट्स इन टू लेस नॉइस पॉल्यूशन. वी शुड यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो 2 बेनिफिट होंगे. ये एनर्जी एफिशिएंट होंगी, कम एनर्जी की इनको रिक्वायरमेंट होगी. इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू सेव द एनर्जी. ओके. एंड सेकेंड थिंग इज दैट दे मे ऑल्सो कोज लेस पॉल्यूशन. पॉल्यूशन भी कम होगा. कौन सा पॉल्यूशन? नॉइस पॉल्यूशन. Nowadays information about energy efficiency is given on the packet of most of the devices. आपके घर में फ्रिज होगा, आपके घर में टीवी होगा, आपके घर में एसी होगी, उनके ऊपर मेंशन होते हैं, स्टार दिए होते हैं. दीज आर द रेटिंग्स. मोर द स्टार्स इट मीन्स इट इज़ मोर द एनर्जी एफिशिएंट. उतनी कम एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो वेन एवर वी बाय द प्रोडक्ट वी मस्ट चेक द रेटिंग. हमें वो रेटिंग देखनी चाहिए, क्वालिटी देखनी चाहिए प्रोडक्ट की. इन दिस वे वी कैन कंजर्व एनर्जी को हम कंजर्व कर पाएंगे. और जितनी अधिक रेटिंग होगी इट मीन्स दैट दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. नॉइस पॉल्यूशन उतना ही कम होगा. बाय अडोप्टिंग दीज मैकेनिज्म वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. थोड़ा बहुत हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. 4 questions आर गिवन. ऑल द क्वेश्चंस आर क्वाइट ईजी बट वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन. हाउ डू इंडस्ट्रीज हार्म द इन्वायरमेंट. इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है. हाउ? इंडस्ट्रीज पोल्यूट द इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, दे कॉज एयर पोल्यूशन. इंडस्ट्री बिजनेसेस इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड levels which leads to air pollution. Industries also cause water pollution. Water pollution is caused by the organic and inorganic waste and waste from the industries. Third, they also cause thermal pollution. Hot water from thermal plant is released directly into river and ponds which cause thermal pollution of the water. So 3 टाइप के pollution हो गए. Fourth pollution है जो इंडस्ट्रीज के कारण होता है वो है noise pollution. Industries also cause this type of pollution, noise pollution. आप अच्छे से अवेयर होंगे इससे. There is also the problem of noise pollution from the factories. Noise pollution cause problems of restlessness, high blood pressure, deafness, etc. आपने घर पे देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा कि the person who works in the high noise environment में वो वर्क करते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, वो गुस्से में रहते हैं, कई टाइप की उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है. Now let's move to our second question. Describe some problems caused by
pollution that you see around you. कुछ हमें प्रॉब्लम बतानी जो पॉल्यूशन के कारण आसपास हमने देखी है. We see many problems caused by pollution around us. I have given some examples. First problem is that water pollution, as it is very common. यमुना रिवर हम देखती हैं, and waterborne disease also very common. People nowadays, especially in Delhi NCR zone, they are facing the waterborne disease क्योंकि water है उसमें काफ़ी सारे chemicals मिले होते हैं because the water, even the underground water is polluted. Second, uneven rainfall. Uneven rainfall is also the result of pollution. Due to the pollution, the climate is changing. उसमें कुछ change आ गए हैं, disturb हो गई है climate हमारा. Third is the lung and asthma. That too is very common due to the air pollution. नेक्स्ट वन इरिटेबिलिटी एंड स्लिपनेस, चिड़चिड़ापन जिसे इरिटेबिलिटी बोलेंगे, स्लिपनेस नींद ना आना. दीज आर मेनली कोज्ड बाय द नॉइस पॉल्यूशन. ग्लोबल वार्मिंग, यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस इन साइंस टू. ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द पॉल्यूशन. रिवर पॉल्यूशन प्रॉब्लम, यमुना नदी का तो पानी ही चेंज हो गया, कलर ही चेंज हो गया, वहाँ देख के लगता नहीं कि उसमें पानी है. सो रिवर पॉल्यूशन इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द पॉल्यूशन कोज्ड बाय द इंडस्ट्रीज. एंड लैंड डिग्रेडेशन, लैंड इज नाउ बिकमिंग इनफर्टाइल. इनफर्टाइल जिसको सर्टाइल आप बोल सकते हो, लेस फर्टाइल बन गई है. वी नाउ नीड टू यूज मोर फर्टिलाइजर्स. क्यों? Because the land is degrading day by day. So these are the some of the results of the pollution. Now let's move to the third question. What can you do to prevent environmental degradation? Environmental degradation को prevent करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We can give the suggestion here. हम यहाँ पे कुछ suggestion दे रहे हैं. Following measures can be very helpful in this way. First suggestion is that factories should not be on the banks of the river. It should not be on the banks of a river so that they can't release or discharge industrial wastage into the river. Second, rainwater harvesting should be mandatory. Rainwater harvesting वो हर इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी होना चाहिए. They should use the rainwater for their various day-to-day purpose. Third, water must be recycled. For every industry, it must be mandatory to water should be recycled. कि ये वाटर है वो उसको रिसाइकिल किया जाए. इससे ये होगा कि मान लीजिए 1 लीटर पानी है वो 8 लीटर पानी को पॉल्यूट कर रहा है. अगर 1 लीटर को 3 बार यूज किया गया तो कम से कम 2 गुना पॉल्यूशन कम हो जाएगा. हॉट वाटर शुड नॉट बी लेफ्ट इन द शुड नॉट बी डिस्चार्ज इन द रिवर बेड. गर्म पानी है वो भी नदी में ना छोड़ा जाए. साइलेंसर्स आर यूज्ड इन मशीन इन द फैक्ट्री. फैक्ट्री में साइलेंसर यूज़ किए जाने चाहिए. फैक्ट्रीज मस्ट बी आउट ऑफ द टाउन, शहर से बाहर होनी चाहिए. फैक्ट्रीज शुड यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीन. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीन होनी चाहिए. इट विल रिड्यूस द एयर पोल्यूशन एज वेल एज द नॉइस पोल्यूशन. नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन. यू हैव गॉन विद योर पेरेंट्स टू बाय इक्विपमेंट फॉर होम यूज़ फ्रॉम द मार्केट. आप मार्केट जाते हो कुछ खरीदना आपको. What things would you tell them to keep in mind when buying equipment? कि कुछ इक्विपमेंट हमें खरीदना है तो हम कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? When buying equipment, we must or should look at the quality of the equipment. हमें क्वालिटी को देखना चाहिए. रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट, रेटिंग को हमें देखना चाहिए. रेटिंग मीन्स मोर एनर्जी एफिशिएंट शुड बी देयर एंड ऑल्सो दैट इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग लाउड नॉइस, यानी कि वो शोर ज़्यादा ना करें. इन दिस वे वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन ऑल ओवर द कंट्री और स्पेशली इन आवर सराउंडिंग एरिया. सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. बहुत आसान थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.